Hello students, I Brajmohan Singh welcome you in today's maths class. Dear students, today we will discuss chapter number 4 tick tick tick. So let's start. Today you will learn about writing time in AM and PM, writing and reading time in different ways. So let's start. Time in AM and PM. In English system, the day starts just after 12 o'clock at midnight and ends at 12 o'clock in the next midnight. The time from a midnight to coming midday noon is called anti-meridian. It is written in short as AM. We say the time between midnight and noon is called AM. The time between 12 o'clock of the day to coming midnight is known as post meridian. It is written in short as PM. We say the time between midday noon to next midnight is called PM. तो इस तरह से बच्चों रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसे हम AM में दिखाते हैं और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसको हम PM से दिखाते हैं। इस तरह से आप देखते हैं कि 12 o'clock midday to 12 o'clock midnight will be written as PM and the time from midnight to coming midday is written in AM format. मैं एक बार फिर से कहता हूँ, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का टाइम AM में लिखा जाता है और दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का टाइम PM में लिखा जाता है। Dear students, there are 24 hours in a day. The face of a clock has numerals from 1 to 12. The hour hand takes 2 full rounds in 24 hours time clock. The first round of the hour hand completes at 12 o'clock midday, also called 12 noon. The second round of the hour completes at 12 o'clock midnight. And one thing you must pay attention is that we do not write AM or PM with 12 o'clock. It is written as 12 noon and 12 midnight. तो बच्चों एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और एक क्लॉक के फेस पर 1 से लेकर 12 तक न्यूमरल्स प्रिंटेड होते हैं। आवर हैंड को 24 आवर्स में 2 राउंड कंप्लीट करने होते हैं। पहला राउंड उसका दिन में 12 बजे होता है और दूसरा राउंड रात के 12 बजे कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 24 आवर्स में आवर हैंड 2 राउंड कंप्लीट करती है। एक बात और, रात के 12 बजे हों या दिन के 12 बजे हों, इनके लिए हम कभी भी AM या PM नहीं लिखते हैं। अगर दिन के 12 बजे हैं तो हम उसको कहते हैं 12 नून और अगर रात के 12 बजे हैं तो उसे कहते हैं हम 12 मिडनाइट। AM और PM को समझने के लिए यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई गई है जिसमें आप देख रहे हैं बिफोर नून टाइम इज़ इन एंटी मेरिडियन, मीन्स दोपहर के ये दिन के 12 बजे से पहले का टाइम AM में होता है और दिन के 12 बजे के बाद का टाइम PM में होता है। इस क्लॉक में आप देख रहे हैं
यहाँ भी 8 o'clock का टाइम है और यहाँ भी 8 o'clock का टाइम है, लेकिन ये टाइम नून से पहले है, इसलिए हम इसके लिए कहेंगे 8 AM, और ये वाला टाइम नून के बाद है तो हम इसके लिए कहेंगे 8 PM. Now we are going to discuss some examples of activities related to AM or PM time. So you can see here, having breakfast relates to AM time. Having lunch relates to PM time. Having dinner to PM time. Going to morning walk relates to AM time. Going to evening walk relates to PM time. Having bath in morning relates to AM time. So students, here you can see there are some activities which are taking place before 12 noon. So they have been written as AM format. So here, having breakfast, going to morning, and having bath in morning, all these activities are done in AM time. And having lunch, having dinner, and going to evening walk, all these activities are done in PM time. So I hope this will be clear to you. Now we are going to learn about reading and writing time in different ways. So let's start. Here you can see time 7:05 can be written as in two different ways. First way is 5 minutes past 7 and another way is 7 hours 5 minutes. तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं ये टाइम हो रहा है 7:05 का. इसको लिखने का एक तरीका है कि पहले आप जितने मिनट्स गुजर गए हैं आप उसको दिखाएं और उसके बाद जो आर का टाइम चल रहा है उसे दिखाएं. तो यहाँ पे लिखा गया है 5 minutes past 7, इसका मतलब 7:05 हो गए हैं. दूसरा तरीका है कि पहले आप आवर्स दिखा दें और फिर कितने मिनट्स हो गए हैं वो दिखाएं. तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 7 hours 5 minutes. इसी तरह से आप यहाँ देख रहे हैं टाइम 8:10 कैन बी रिटन एज 10 minutes past 8 एंड अनदर वे इज़ 8 hours 10 minutes. तो बच्चों एक तरीके में तो आप देख रहे हैं कि हम पहले मिनट्स को दिखाते हैं और फिर आवर्स को, दूसरे में हम आवर्स को पहले दिखाते हैं और फिर मिनट्स को. जब कभी हमें मिनट्स को पहले दिखाना है तो हम उसके लिए कैसे लिखते हैं, पहले वो मिनट्स और फिर पास्ट वर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद जो भी आवर्स हैं उस नंबर को बोला जाता है. सो आप यहाँ देख रहे हैं 10 minutes past 8 and another way is 8 hours 10 minutes. Another example is time 9:20 can be written as 20 minutes past 9 or you can say 9 hours 20 minutes. In example 4, time 10:25 can be written as 25 minutes past 10. Another way is 10 hours 25 minutes. In example 5, time 11:40 can be written as 40 minutes past 11 or another way is 11 hours 40 minutes. Example 6, time 12:50 can be written as 50 minutes past 12 or 12 hours 50 minutes. And the last example, time is 0:20 can be written as 20 minutes past 0 और another way is 0 hours 20 minutes. तो बच्चों इस लास्ट एग्जाम्पल में आप देखिए ये टाइम वो है जब रात के 12 बजते हैं और रात के 12 बजे के बाद जब टाइम स्टार्ट होता है तो मिनट से स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे 20 मिनट्स गुजर गए हैं और अभी 1 नहीं बजा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है 20 मिनट्स और आवर्स कितना है 0 क्योंकि अभी 1 आवर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 20 minutes past 0 और आप कह सकते हैं कि 0 hours 20 minutes. Dear students, now you will learn how to tell the time in quarter format or quarter past time. तो आप यहाँ देख रहे हैं इन सभी क्लॉक्स में आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि जो हमारी मिनट हैंड है वो 3 की तरफ इशारा कर रही है. तो जब कभी हमारी मिनट हैंड 3 की तरफ इशारा करती है तो उस समय टाइम होता है क्वार्टर पास्ट का.
तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि आवर हैंड 1 की तरफ है और मिनट हैंड 3 की तरफ है। तो इस टाइम को हम क्या पढ़ेंगे, 1/4 इसी तरह से आवर हैंड 5 की तरफ है और मिनट हैंड 3 की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे 5/4। यहाँ क्वार्टर से मतलब है 15 मिनट्स। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हर घड़ी में 15 मिनट गुजर चुके हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं 1/4 मीन्स 15 मिनट गुजर गए हैं। नाउ कमिंग टू दिस, here you can see minute hand is pointing towards 3 and hour hand is pointing towards 11, so it is 1/4. In this way you can see other clocks also where time has been shown in as 1/4 time. So here 1/4, 1/12, 1/8, 1/10, 1/3, 1/7. So I hope you would have अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। यहाँ पर सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि मिनट हैंड 3 पर होनी चाहिए और आवर हैंड जिस भी नंबर की तरफ इशारा करेगी तो हमें पहले 1/4 बोलना है और उसके बाद आवर हैंड की जो पोजीशन है उस नंबर को बोलना है। तो इस तरह से हम 1/4 का टाइम बता सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 1/2 टाइम। सो आप यहाँ देख सकते हैं, इन ईच क्लॉक आवर मिनट हैंड इज pointing towards 6. You can see here in all clocks minute hand is pointing towards 6. It means we have to multiply 6 by 5, so we get 6 5s are 30. So 30 minutes have passed. तो जब बच्चों 30 मिनट्स गुजर जाते हैं तो हम उसको कहते हैं 1/2। और ऐसी सिचुएशन में हमारी आवर हैंड हमेशा 2 नंबर के बीचों बीच होगी हमेशा। देखिए यहाँ पे जैसे 11 और 12 के बिल्कुल बीचों बीच है आवर हैंड, यहाँ पर 3 और 4 के बीचों बीच है आवर हैंड, यहाँ पर 1 और 2 के बीचों बीच है आवर हैंड। इस तरह से दूसरी क्लॉक्स में भी आप देख रहे हैं कि आवर हैंड 2 नंबर के बिल्कुल बीचों बीच है। तो बच्चों इस तरह का टाइम कैसे बताया जाता है वो बहुत ईजी है। सिर्फ आपको क्या बोलना होता है, क्या लिखना होता है कि 1/2 और उसके बाद आवर हैंड जिन 2 नंबर के बीच में है तो उसमें जो छोटा नंबर है वो टाइम हमें बोलना होता है। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर 11 और 12 के बीच में है तो 11 स्मॉलर, सो वी विल से 1/2 यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 और 4 के बीच में तो 3 स्मॉलर है, सो वी विल से 1/2. यहाँ हम देख रहे हैं 1 और 2 के बीच में है आवर हैंड, सो 1 इज स्मॉलर, सो वी विल से 1/2. बच्चों बेसिकली यहाँ पर अभी फुल टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 30 मिनट्स गुजरे हैं, इसीलिए हमें छोटे नंबर को एज अ आर बोलना होता है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेक्शन, टाइम इन क्वार्टर फॉर्म, सो क्वार्टर टू टाइम। सो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन ईच क्लॉक आवर मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 9 9 9 9 9 9, but our hour hand is pointing towards some different position. Here you can say, here our hour hand is slightly away or slightly back from 1, here slightly away from 2 or slightly away from 3, here slightly away from 12 and slightly away from 4 and slightly away from 6. Means in each case यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी आवर हैंड एग्जैक्टली उस नंबर के सामने नहीं, थोड़ा सा पहले उससे है, थोड़ा सा पहले है। यहाँ बिल्कुल 1 के सामने ना होगा, थोड़ा 1 से पहले है, 2 से पहले, 2 के सामने ना होगा, 2 से पहले है, और 3 के सामने ना होगा, 3 से थोड़ा पहले है। इसका मतलब अभी ये वाला टाइम नहीं हुआ है। ये टाइम होने में अभी कितना मिनट बाकी, जैसे यहाँ पे अभी 1 o'clock का टाइम नहीं हुआ है, तो 1 o'clock का टाइम होने में कितने मिनट्स बाकी हैं? अभी 15 मिनट्स बाकी हैं, क्योंकि 9 से 12 तक जाने में अभी मिनट हैंड को कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट्स। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 9 से 10 5 मिनट्स,
10 to 11 5 minutes and 11 to 12 5 minutes. So 5 is repeating 3 times. It means 5 3 is 15. इसका मतलब अभी मिनट हैंड को 12 तक पहुंचने में 15 मिनट्स बाकी हैं और 15 मिनट्स के टाइम को कहा जाता है क्वार्टर. जैसे ही 9 12 पर पहुंचेगी तो हमारी आर हैंड एग्जैक्टली 1 के सामने आ जाएगी, तब टाइम हो जाएगा 1 o'clock. इसका मतलब अभी 1 o'clock का टाइम नहीं हुआ है और अभी 15 मिनट्स बाकी हैं. तो इस तरह के टाइम्स को जब कभी मिनट हैंड 9 के सामने होती है तो हमें इसको इस तरह से बोलना होता है क्वार्टर टू 1. मीन्स अभी जो टाइम होने वाला है बस उसको बाद में बोलते हैं. सो क्वार्टर टू 1, क्वार्टर टू 2, क्वार्टर टू 3. हियर यू कैन सी इट्स क्वार्टर टू 12, क्वार्टर टू 4, क्वार्टर टू 6. यहाँ देखेंगे अभी 1 का टाइम नहीं हुआ इसलिए हम इसको क्वार्टर टू 1 बोल रहे हैं. जस्ट अभी 15 मिनट के बाद 1 o'clock का टाइम हो जाएगा. यहाँ पर 2 o'clock का टाइम हो जाएगा इसलिए क्वार्टर टू 2. और यहाँ पर 3 o'clock का टाइम हो जाएगा अभी 15 मिनट के बाद. सो क्वार्टर टू 3. यहाँ पर अभी 12 o'clock का टाइम हो जाएगा आफ्टर 15 मिनट्स. सो वी आर सेइंग क्वार्टर टू 12. इन द सेम वे हेयर अभी 15 मिनट्स के बाद 4 o'clock का टाइम हो जाएगा. सो वी आर सेइंग क्वार्टर टू 4 एंड हेयर क्वार्टर टू 6. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब आज समझ में आया होगा. So see you in the next class with a new topic. So thanks for watching. See you in the next class with a new objective. So take care and stay happy.